یہ پرابلم جو ہے اس کی کیا کتنی گہری پرابلم ہے یہ اسٹوڈنٹ اکوبٹ ڈگری اور بہترین ڈانسر ہے یہ بالکل کرائسٹ ہائی سیکنڈری اسکول کشتواڑ کے نزدیک بھنڈار کوٹ کے مقام پر حضرت زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ضلع کشتواڑ کی اہم زیارت گاہوں میں سے ایک ہے. اس درگاہ پر زائرین کا ہجوم رہتا ہے، تاہم یہاں کئی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. پیش ہے ہمارے نمائندے عاطف لون کی یہ رپورٹ. بھنڈار کوٹ میں واقع حضرت زین الدین رشی کی درگاہ خطہ جناب کی اہم درگاہ شمار کی جاتی ہے. اس درگاہ کو مذہبی ہم آہنگی کی ایک مثال سمجھا جاتا ہے. درگاہ پر نہ صرف مسلم برادری کے لوگ آتے ہیں بلکہ ہندو، سکھ اور عیسائی برادری کے لوگ بھی بڑی تعداد میں زیارت پر حاضری دیتے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زیارت ملک کی ان چند زیارت گاہوں میں سے ایک ہے جہاں آپسی اتحاد و محبت کا درس ملتا ہے. تاہم لوگوں کی شکایت ہے کہ درگاہ میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. یہاں نہ بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ہے اور نہ بیت الخلاؤں کا انتظام ہے. یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ہندو بھی مسلم بھی آتے ہیں، یہاں ہر ریلیجن کے لوگ آتے ہیں اور جو بھی یہاں پہ مانگ مراد ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. یہاں پہ بہت شکتی ہے. یہاں پہ ہمارے بزرگ لوگ بھی آتے تھے، صدیوں سے آتے ہیں. ہمارے کو بیٹھنے کے لیے بھی جگہ چاہیے، باتھ روم چاہیے، سرائیں چاہیے، گورنمنٹ کا چاہیے یہاں پر اچھی طرح سے یہاں پر بیٹھنے اور اٹھنے کے لیے جگہ رکھے، کیونکہ یہاں پر ہر مذہب، سکھ، عیسائی، ہندو، مسلم، ہر آدمی یہاں پر آتا ہے. لوگوں کی مانگ ہے کہ درگاہ کے آس پاس پارک تعمیر کیے جائیں تاکہ یہاں مذہبی سیاحت کو فروغ ملے اور کئی افراد کو روزگار بھی فراہم ہو. ای ٹی وی نیوز کشتواڑ. ای ٹی اردو کشمیر میں فی الحال اتنا. ایک وقفے کے بعد دیکھیں گے خاص بات میرے ساتھی اعظم اعظمی کے ساتھ. آداب. ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ. جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے. کیا ہو آپ کا فیصلہ، بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن. ووٹ کرے گا انڈیا. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. دنیا اپڈیٹ خبروں کا نیا اور انوکھا شو، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی اہم خبریں اور کریں گے ان کا تجزیہ. جانیں گے دنیا کی اہم گھٹناؤں کا بھارت پر کیا ہوگا اثر. دکھائیں گے گلیمر جگت کا حال اور تیز خبروں میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوا پوری دنیا میں بیتے ہفتے کے دوران. تو دیکھنا نہ بھولے دنیا اپڈیٹ ہر رویوار شام 6 بجے ای ٹی وی اردو پر. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب. ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. بورا فرقے کے روحانی پیشوا سیدنا برہان الدین ممبئی کے روضہ اطہر میں سپرد لہر، آخری دیدار کے لیے جمع ہوئے کئی لاکھ عقیدت مند.
मुजफ्फर नगर फसाद मुतासिरीन के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं मिल पा रहा है दाखिला, प्राइवेट स्कूलों ने पेश की अपनी खिदमत। महाराष्ट्र का सरहदी इलाका कोकन बना उर्दू अदब का नया गहवारा, अदीबों ने कहा उर्दू का नया दबिस्तान बनने की फजा साजगार। और मारूफ अदीब चंद्रभान ख्याल इकबाल अवार्ड के लिए मुंतखब, सीरत नबवी पर तसनीफ लौलाक पर मिलेगा अवार्ड। और अब खबरों की तफसील। दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन को सुपर्दे लहद कर दिया गया। सैयदना के आखिरी दीदार के लिए लाखों अकीदतमंद मुंबई में जमा हो गए और शहर की सड़कें तंगदामनी का शिकवा कर रही थीं। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत की वजह से कल सुबह भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 22 अफराद की मौत हो गई और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन को मुंबई के भिंडी बाजार में वाक़े रोज़े अतहर में सुपुर्द लहद कर दिया गया। सैयदना के आखिरी दीदार के लिए मुंबई में लाखों की तादाद में अकीदतमंद जमा हो गए थे। सैयदना बुरहानुद्दीन का जुमे को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। वो 102 बरस के थे। सैयदना का जुलूस जनाजा सुबह 10 बजे सैफी महल से बरामद हुआ और मुंबई के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ भिंडी बाजार पहुंचा। सैयदना बुरहानुद्दीन के फर्जंद सैयदना मुफज्जलुद्दीन ने सैयदना की नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयदना का जसद खाकी तिरंगे में लिपटा हुआ था। बोहरा तबके के लोग अपने रूहानी पेशवा की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। लाखों की तादाद में अकीदतमंदों के जमा होने की वजह से मलाबार हिल्स इलाके में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद की जाने गई। पुलिस का कहना है कि दम घुटने और भगदड़ की वजह से हलाकतें पेश आई हैं। एकदम पीए सिस्टम नहीं था उधर, तो गेट बंद हो गया। तो गेट बंद होने से कुछ लोग जो है गिर गए, लेकिन ज्यादातर जो है डॉक्टर साहब इधर बता रहे हैं कि ज्यादातर जो डेथ हुई है, जो मौत हुई है, वो सफोकेशन हुआ है। उधर बोहरा तबके ने पुलिस और हुकूमत पर जुलूस जनाजा के लिए मुनासिब इंतजाम न करने का इल्जाम लगाया है। I am not much aware about that, but the only thing I would like to say that there was lot of people pouring in, and there was not much of the attention given from the side of government and the police, who should have been here and who should have managed the things. It is my personal opinion. सैयदना बुरहानुद्दीन गुजरात के शहर सूरत में पैदा हुए थे। वो सैयदना ताहिर सैफुद्दीन के बड़े फर्जंद थे। 1965 में वो अपने वालिद के जानशीन बने। सैयदना बुरहानुद्दीन बोहरा फिरके के 52वें रूहानी पेशवा थे। मिस्र की हुकूमत ने उन्हें वहां के आला तरीन सिविलियन अवार्ड क़िलादतुन नील और उर्दून की हुकूमत ने सितारे उर्दून के एजाज से सरफराज किया था। सैयदना की समाजी और तालीमी खिदमात के पेश नजर काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कौमी हकूक इंसानी कमीशन ने मुजफ्फरनगर और शामली के राहत कैंपों में 47 अमवात की तस्दीक करते हुए रियासती हुकूमत से मौत की वजह मालूम करने उनके घर वालों को मुआवजा देने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 रोजा कैंप के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने फसाद मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए रियासती हुकूमत की तारीफ की। कमीशन ने कैंपों में तिब्बी सहूलियात की कमी का एतराफ करते हुए इन्हें बेहतर बनाने की हिदायत दी। कमीशन ने फसाद के दौरान ख्वातीन पर मजालिम से मुतालिक 13 केसों में जल्द कार्रवाई की हिदायत दी है। कमीशन ने 2 रोजा कैंप के दौरान पुलिस कस्टडी में मौत और इनकाउंटर के 90 केसों की समाअत की। इनमें से 25 मामलों में 1,20,50,000 रुपए का हर्जाना देने का भी हुक्म दिया है। Pointed out to the state government that the medical facilities and the camps are not adequate and the same need improvement. It was stated by the government that 47 persons, including children, have died in the camp till 3rd December 2013. The Commission asked the state government to look into the cause of death of these persons and give reasonable compensation to the bereaved families. State government was also asked to provide adequate protection against winter to the persons staying in these camps.
मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हालात किसी से पोशीदा नहीं है। हुकूमत के दावों की हकीकत धीरे धीरे मंजर पर आ रही है, लेकिन ये भी सच है कि हर जगह हालात यकसा नहीं है। खामपुर गांव में जमीयत कॉलोनी के मुतासरीन को बच्चों की तालीम का मसला दरपेश था, लेकिन अब ये मसला हल हो चुका है। पेश है एक रिपोर्ट। फसाद के बाद मुजफ्फरनगर के खामपुर गांव में सैकड़ों लोगों को सर छुपाने के लिए आशियाने मिल गए। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँचे उन लोगों के लिए बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखना एक अहम मसला है। हिजरत पर मजबूर किए गए ये मुतासरीन हालात से मुकाबला करने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। अपने नौनिहालों की तालीम का सिलसिला शुरू करने के लिए मुतासरीन ने सरकारी स्कूलों का रुख किया ताकि बच्चों को दाखिले मिल जाएं। लेकिन स्कूल इंतजामिया ने उन्हें क्या मशवरा दिया, सुनिए मुतासरीन की जुबानी। सरकारी स्कूल पास में है, हम गए थे वहाँ पे। वो बोले कि जी अब हमारे पास किताबें भी नहीं है, ड्रेस वगैरह भी नहीं है, अगले साल देखो कर लेंगे अगले साल। और अभी तुम्हारे राशन कार्ड वगैरह भी नहीं है। सरकारी स्कूल में मुतासरीन के बच्चों को दाखिले नहीं मिलने पर एक निजी स्कूल में उन बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। निजी स्कूल के इस इक़दाम से मुतासरीन को किसी हद तक राहत हुई है। पढ़ाई का जी यूनिक स्कूल में हमारे बच्चे यहाँ से यूनिक पब्लिक स्कूल है ना, उसमें जा रहे सब बच्चे। अच्छा, क्या इंतजाम है, क्या कहा उन लोगों ने पढ़ाने की? उन लोगों ने ये कहा हम तुम्हें इन बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, कापी किताबें वगैरह ड्रेस वगैरह सभी उन्होंने इंतजाम किया। यहाँ पे सभी जुगाड़ आ जा और बच्चे स्कूल चले जाए। जिन बच्चों का नहीं स्कूलों में हो पाया, मदरसे जा रहे हैं, वो किस तरह से पढ़ रहे हैं वहाँ पे? वो कुछ इस्लामिया मदरसे में जा रहे हैं बच्चे। मदरसे में जा रहे हैं जी। फसाद मुतासरीन के साथ अखिलेश हुकूमत का रवैया कैसा रहा ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन बच्चों की तालीम के मामले में भी ये वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत ने दिगर जरूरियात की तरह इस बुनियादी जरूरत को भी नजरअंदाज कर दिया। ईटीवी न्यूज़ मेरठ। आंध्र प्रदेश में वक्फ की जायदाद पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर करने का हुकूमत ने ऐलान किया है। वज़ीर अक़लियती बहबूद व वक्फ उमूर सैयद मोहम्मद अहमदुल्ला ने अक़लियती कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल और अक़लियती महकमे के खुसूसी अफसर उमर जलील के हमरा शहर में मौजूद वक्फ जमीनों का मुआयना किया। वादरे के हज हाउस से मुतसिल जमीन, बेगमपेट की वक्फ जमीन और शादा कॉलेज के रूबरू मौजूद वक्फ जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मंसूबा है। वो हमारे हज हाउस के बाजू की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को थोड़ा पैसा कम है, कमी पैसे है उसमें। ओपन टेंडर रख के, ओपन टेंडर से जितना किससे ज्यादा है उससे बाजू का, उसके बाजू का है खाली है, वो भी लेके जमाना हो गया। जमाना नहीं, मैं हमारे सेक्रेटरी साहब से और हमारे कमिश्नर से डिस्कस करके वहाँ क्या करना नेक्स्ट इंशाअल्लाह उसके मुताबिक भी जल्दी से जल्दी करेगा। उसके बाद शादान कॉलेज के सामने 500 स्क्वायर यार्ड है, उससे भी कल ही हमारे सेक्रेटरी साहब को 10 लाख रुपए देके इमीडिएट उससे काम स्टार्ट कर दिया। तो एक ग्राउंड फ्लोर 4 फ्लोर्स डाल देके हमारा वक्फ बोर्ड के खुद बना पैसों से। मैं हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर रघुवीर से बात करके हमारे सेक्रेटरी साहब को, हमारे कमिश्नर साहब को साथ लेकर उनसे मीटिंग करके एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कलेक्टर्स को, जहां जहां वक्फ बोर्ड की लैंड है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डीआरओ को पकड़ के हमारे वक्फ बोर्ड को फिर हैंड ओवर करने। नजर खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, I tell you. अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. Get idea. आइडिया इंटरनेट अपनाएं। चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। वो सुबह कभी तो आएगी। गरीबों को, अमीर लोगों को, हर जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें। उस बेड पर जो आया
वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। कर्नाटक के वज़ीर इत्तलात और हज आर रोशन बेग की परेशानियों में मजीद इजाफा हुआ है। बेंगलुरु में कल समाजी कारकुन SR हिरामत और अब्दुल हक सुरती ने मीडिया के सामने रोशन बेग के खिलाफ चंद अहम दस्तावेजात जारी किए। इस मौके पर समाजी कारकुन SR हिरामत ने कहा कि रोशन बेग के खिलाफ सरकारी जमीन हड़पने के अलावा दीगर संजीदा इल्जाम हैं। रोशन बेग के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ನಮ್ಮ ಈ ಸೂರ್ತಿಯವರು ನಾವೇನೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೋಟನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಗಂಭೀರ ಆಪಾದನೆಗಳು ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು, ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद के फैसले पर गौर करने का इरादा जाहिर किया है। MP बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कोलकाता में AIUDF के दफ्तर के एहतजाज के मौके पर इस बात का इजहार किया। AIUDF के सरबराह का कहना है कि इनकी पार्टी मगरबी बंगाल की 12 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। हुआ है ये, इससे पहले शायद पूरे जितने रिकॉर्ड थे वो सारे तोड़ दिए गए। बंगाल का अपना इशू ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 साल हो गए दीदी को आए हुए। दीदी ने वादा किया था कि हम मुसलमानों के लिए और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए सब कुछ कर देंगे। अब दीदी कहती है कि मेरे पास फंड नहीं है, सेंट्रल मुझे पैसा नहीं दे रहा है। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि सूरज कितना उठता है, क्योंकि यही आप पार्टी वालों का अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 10-15 दिन के अंदर बहुत सी चीजें इनके भी सामने आ रही है। तो एकदम से देखा जाएगा, उसके बारे में सोचेंगे सीरियसली हम लोग। अंदर आना पड़ेगा। बिहार में अक़लियती स्कीमों के निफाज में आने वाली दुश्वारियों पर महकमे के चेयरमैन ने खुद सवाल खड़े कर दिए। इनका इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत अक़लियतों के लिए स्कीमों का ढिढोरा तो जमकर पीटती है, लेकिन इन स्कीमों के नफाज के लिए संजीदा नहीं होती। यही वजह है कि बेशतर स्कीमों का खातिर ख्वाह फायदा अक़लियती तबके तक नहीं पहुंच पाता। हमने उनसे गुजारिश किया कि जो सेक्रेटरी है, जो अफसर हमारा जाता है, वो आपके सामने वो नहीं कह पाता है जो हम कहेंगे। जो हमारा प्रॉब्लम है, जो हम देखते हैं गांव में कि मुसलमानों को क्या दिक्कत है, हम कौन सा काम करें कि मुसलमान अक़लियतों का डेवलपमेंट हो। तो इस काम के लिए हम जितना अच्छी बात बता सकते हैं वो हमारा अफसर नहीं बता सकता आपके सामने। हमने उनसे गुजारिश किया था, उन्होंने कहा था कि हम हर अल्टरनेट महीने हम सभी रियासतों के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, लेकिन उनको भी मुझको लगता है कि 2 साल से ज्यादा हो गया वक्फा, लेकिन एक दिन भी उन्होंने दावत हम लोगों को नहीं दिया, नहीं बुलाया और अक़लियतों के मसले पर गुफ्तगू नहीं की। बज़्म फ़रोग़ अदब कोकन के ज़ेर एहतमाम एक सिम्पोजियम हुआ। उर्दू अदब के फ़रोग़ में कोकन का हिस्सा उन्वान से मुनक़िदा इस सिम्पोजियम में उर्दू के मुमताज़ स्कॉलर्स ने शिरकत की और कोकन के अदबी सरगर्मियों पर रोशनी डाली। महाराष्ट्र में सरजमीन कोकन को जियालों के सरजमीन के हवाले से तो सभी जानते हैं, लेकिन उर्दू अदब के हवाले से यहाँ की सरगर्मियां मंजर-आम पर नहीं आ सकी। उर्दू अदब की तारीख में भी इस खित्ते की अदबी सरगर्मियों का कोई हवाला नहीं। सिम्पोजियम के मेहमान खुसूसी खतीब कोकन अली M शमसी ने कोकन की उर्दू अदब की तारीख पर कुछ इस तरह से रोशनी डाली। इनका कहना है कि अब जबकि मुल्क में उर्दू के दबिस्तान टूट रहे हैं, ऐसे में लोगों की निगाह सरजमीन कोकन की जानिब है, जहाँ पर उर्दू का दबिस्तान बनने की फजा साजगार है। दरअसल इस वक्त कोकन की फिजा जो है ये उर्दू के दबिस्तान बनने की फिजा है। यहाँ स्कूलों का, उर्दू स्कूलों का, जूनियर कॉलेज का जाल बिछा हुआ है। उसके अलावा दीनी मदारिस भी है, तो उर्दू का जो है बड़ा माहौल बना हुआ है। इससे पहले भी चूंकि यहाँ कोई तहकीक करने वाला नहीं था,
लेकिन हम जैसे थोड़े बहुत जानने वाले लोग जानते हैं कि 250 साल पहले हमारे रत्नागिरी में मौलवी इस्माइल बुढ़िया ने जंतर मंतर उर्दू का प्रेस कायम किया था। अब जो फिजा बनी है जिसमें उर्दू के जानने वालों की तरबियत हो रही है, और अब जिस जगह हम आए हैं कई एक नाम हमारे जहन में उछलते हैं। आजाद नूह तुड़िल भी यहाँ के थे, साकी तुड़िल भी यहाँ के थे, साहिल तुड़िल भी यहाँ के थे, और नूही और ये तमाम जो वाबस्तगियां देख रहे हैं कि इस वक्त उर्दू के लिए इससे ज्यादा उस्तवार माहौल किसी जगह है हिंदुस्तान में, ऐसा मैं महसूस नहीं करता। मेरे उस्ताद अब्दुल रहीम नश्तर साहब, उन्होंने मुझे बच्चों की आदत तख्लीक करने के लिए तवज्जो दिलाई। दहली से निकलने वाला बच्चों का रिसाला निराली दुनिया, उसमें वो नज़्में शाया हुई और वहीं से बच्चों के लिए आदत तख्लीक करने का मुझमें जुनून पैदा हुआ। 30 साल पहले कोकन के मुहिबान उर्दू ने बज़्म फरोग़ उर्दू कोकन के नाम से एक इदारा कायम किया। ये इदारा उर्दू अदब के फरोग़, तरवीज और इशाअत में अहम रोल अदा कर रहा है। तज़किरा शोरा कोकन के अशात का सहरा इसी इदारे के सर जाता है, जिसके जरिए सैकड़ों साल कदीम उर्दू सरमाया महफूज हुआ। इदारे की सरगर्मियां जारी हैं। सिम्पोजियम में नौजवान शायर इकबाल सालिक के अदबी अतफाल पर लिखी गई किताब पहला कदम का इजरा भी किया गया। जश्न हो रहा है वफा साहब, वफा राजेवाड़ी, ये कोहनामक शायर हैं, ये एक जाती हुई नस्ल है, और जिसकी किताब का इजरा हो रहा है इकबाल सालिक पहला कदम, ये एक नई नस्ल, यानी लोग जो रुखसत हो रहे हैं उनके लिए नए लोग जो हैं वो सामने भी आ रहे हैं, नए कलम सामने आ रहे हैं। तज़किरा शोराए कोकन की शक्ल में एक ऐसी अदबी किताब शाये की गई जो कोकन में एक मुस्तनद अदबी दस्तावेज की हैसियत रखती है। बच्चों के अदब से मुतल्लिक शुआए नौ भी बज़्म की एक काबिल कद्र तसनीफ है, जिसे शाये करके बज़्म ने एक और अदबी कारनामा अंजाम दिया है। सिम्पोजियम में जहां कोकन के उर्दू अदब का जायजा लिया गया, वहीं कोकन के बाहर उर्दू अदब के हवाले से जो कुछ लिखा जा रहा है उसका कोकन के अदब से मुआवजना भी किया गया। ईटीवी न्यूज, कोकन, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के चंद्रभान ख्याल को इकबाल अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। चंद्रभान को उनकी तसनीफ लोलाक पर इस अवार्ड का मुस्तहिक करार दिया गया है। लोलाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी गई है। चंद्रभान ख्याल को इस अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर अदबी हलकों में मिले जुले तासुरात का इजहार किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के महकमा सकाफत की जानिब से यह अवार्ड मुल्क के नामों और शख्सियतों को दिया जाता है। ये बावकार अवार्ड पाने वालों में कुर्रतुल ऐन हैदर, सरदार जाफरी, शीन काफ निजाम जैसी नाम और हस्तियां शामिल हैं। अवार्ड 1 लाख रुपए और सिपासनामे पर मुश्तमिल होता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद ये लौलाक का रिकॉग्निशन है और ये सरवर कायनात के अकीदत का फल है जो उन्हें मिला है। अगर अदरवाइज अगर लौलाक न लिखते तो शायद वो इस काबिल मैं उन्हें नहीं समझता कि ये अवार्ड उन्हें दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इस अवार्ड का बड़ा ऊंचा वक़ार है और हिंदुस्तान के टॉप के अदीबों को अभी तक दिया गया है। ये इकबाल एजाज जो है वो मध्य प्रदेश के महकमा सकाफत का बहुत ही बावकार एजाज है और ये बड़ी खुशी की बात है कि आमतौर पर अभी जिन लोगों को भी ये एजाज मिला है वो सही मानों में इसके मुस्तहिक थे। जहां तक चंद्रभान ख्याल साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि एक सही वक्त में सही शख्स को ये एजाज दिया गया। वो उर्दू के शहदाई हैं, मोहम्मद के शहदाई हैं और जिन्होंने भी उनका मजमुआ लौलाक पढ़ा है वो इस बात की गवाही देगा कि ऐसा महसूस होता है जैसे अकीदत, न्याजमंदी, मोहब्बत मुजस्सम होकर हमारे सामने आ गई है। जिस तरह हुजूर मुकद्दम की शान में उन्होंने अशार की दुनिया सजाई है, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी हद तक ये इसी का एजाज है कि आज वो इस मुख्तदिर इनाम से सरफराज हुई। देखिए, चंद्रभान ख्याल साहब का जो वर्क है उससे मुझे खुशी हुई कि उनको इकबाल सम्मान मिल रहा है, इकबाल अवार्ड मिल रहा है। चंद्रभान ख्याल ने कौमी आवाज में बहुत दिन रहे और जाहिर है उन्होंने उनके जमाने में अखबार में जो भी काम हुआ वो हमारे आपकी असल चीज ये है कि उन्होंने NCPL में जो जिस तरह से दिन गुजारे वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे दिन थे और उन्होंने काम किया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि उनका जो मजमुआ है लौलाक, इसलिए नहीं कि वो सीरत के ऊपर है या मुसलमानों को खुश करने के लिए,
बल्कि उसके अंदर जो फिक्र आई है वो कहीं अल्लामा इकबाल की फिक्र से मेल खाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि उनको ये इकबाल सम्मान सही मिला। नांदेड़ की स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का 16वां कन्वेंशन का इनेकाद कल अमल में आया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से महाराष्ट्र के गवर्नर शंकर नारायणन और पंजाब के गवर्नर शिवराज पाटिल चाकोर ने शिरकत की। इस मौके पर पंजाब के गवर्नर शिवराज पाटिल चाकोर को डीलिट की एजाजी डिग्री तफवीज की गई। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तलबा में यशवंत कॉलेज के होनहार तलबा कहकशा अर्शी को एमएससी जूलॉजी में गोल्ड मेडल के एजाज से नवाजा गया। इसी तरह साइंस कॉलेज के होनहार तलबा सना को एमएससी बॉटनी में गोल्ड मेडल का हकदार करार दिया गया। इकबाल जावेद को उनके तहकीकी मकाले के लिए पीएचडी की डिग्री से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की लकड़ी की कारीगरी पूरी दुनिया में मशहूर है। खासतौर से लकड़ी पर की जाने वाली बारीक और खूबसूरत नक्काशी की एक अलग ही शिनाख्त है। लेकिन लकड़ी की नक्काशी करने वाले कारीगर माशी बदहाली का शिकार है। कानपुर में चलने वाले खादी महोत्सव में सहारनपुर से आए लकड़ी कारीगरों के बनाए हुए सामान लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। खासतौर से लकड़ी पर की जाने वाली खूबसूरत नक्काशी इन कारीगरों की फनी महारत की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन इतनी हुनरमंदी के बावजूद छोटे कारीगरों को हुकूमत की तरफ से वो सहूलियात नहीं मिली जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। सर संभावनाएं तो ऐसी हैं, जो ज्यादा एक्सपोर्टर हैं तो सर वो तो बहुत फायदे में हैं। हम लोग तो मजदूर किस्म के आदमी हैं बस। सरकार की तरफ से जैसी सहायता एक्सपोर्टर को मिलती है उस तरह नहीं, हमें कोई सर इस तरह का कुछ नहीं। किस तरह का होना चाहिए आपके साथ? सरकार की जो सहायता होनी चाहिए किस तरह की होनी चाहिए? ये है कि पूरा प्रोत्साहन होना चाहिए, कुछ जरा लोन की सुविधा होनी चाहिए कम ब्याज दरों पे, तो कुछ आदमी कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज बस यही है। कुछ ही जो हमारे मेले हैं सिर्फ 5-6 महीने के होते हैं, मार्च के बाद ये क्लोजिंग के बाद खत्म हो जाते हैं। बस पूरे हम लोग समझे फेरी करते हैं ऐसी बस पूरी। कारीगरों का कहना है कि हुकूमत बड़े एक्सपोर्टर्स को तो हर तरह की सहूलियात देती है, लेकिन इस रिवायती काम से जुड़े छोटे कारीगरों को हुकूमत ने नजरअंदाज कर रखा है। लेकिन सर अब कमर टूट गई है हर आदमी की, महंगाई की वजह से लकड़ी इतनी महंगी हो गई है, सब कुछ के बहुत ज्यादा। अच्छा, लकड़ी की कटाई पर रोक लगने की वजह से भी कुछ इस पर असर पड़ा है? नहीं, वो पहले था, वो रोक तो हटा दी गई है, लेकिन फिर अब जो वैट का चक्कर पड़ा है, ये 14.5% इसमें टैक्स है, तो सब कुछ लीगली करना पड़ता है। छोटे कारीगरों का कहना है कि हुकूमत कारीगरों का अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज देने का वादा तो करती है, लेकिन सरकारी बैंकों की शर्तों पर कर्ज हासिल करना जुए शीर लाने से कम नहीं। ईटीवी न्यूज कानपुर। तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। देखिए ईटीवी उर्दू
सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी।